Hello students, myself Dr. Seema Gupta. In this lockdown period, when we all are indoors, but let us not stop our teaching learning process. And in continuation with this e-learning process, I am here with one more topic, that is physical distribution. Physical distribution, another name for this, the logistics management, again is an important activity that every marketer has to perform. Firstly, it is why it is called logistics management. Actually, logistics term was being used at the war time for taking the supply of goods, war equipments to the workplace. So, but nowadays, this logistics, which is basically a supply chain management, is being used in business also. So, logistics management and physical distribution are one and the same thing. Moving towards what it is, distribution, and that is physical of goods and services, which means physical movement, physical flow of goods from the producer to consumer. Goods which are produced for the ultimate consumers, and it is only with the help of physical distribution function that their flow is taken towards consumers. Means जो goods और services उपभोक्ताओं के लिए बनाई जा रही हैं, उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कार्य की मदद ली जाती है. It is very important function of marketing. Rather, it is very important component of marketing mix. Out of those 4 P's of marketing mix, 1 P was for place, and place physical distribution of goods and services. So, it includes, means physical distribution includes all those activities which help in movement or transfer or flow of goods and services from producer to consumer, and for this transferability of goods or movement of goods, some special functions are taken help of, that are transportation, warehousing, material handling, inventory control, order processing, packaging, customer services. Right? So physical distribution का मतलब है कि goods को, services को customers तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना. Right? कब? At the right time. Right time means when they are in demand. Right? Where? At the right place. Right place means where they are in demand. Is it clear? So, physical distribution is concerned with making the goods available to the right person at the right time at the right place. And for performing this function, सही वस्तुओं को सही स्थान पर, सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचाने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं, जिन कार्यों की सहायता लेनी पड़ती है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा. राइट? सो going through with this meaning, let us start with
the importance. My next slide is how this physical distribution is important in marketing. Physical distribution की marketing में importance जानने के लिए let us see how it is important. Firstly, it creates time and place utility. Time and place utility means the time when the product or service is useful and the place where it is useful. And time utility is created with the help of warehousing. Means warehousing function creates the time utility. How? By storing the goods when not in demand and releasing them when they are required or when they are in demand. Means goods स्टोर की जाती हैं वेयर हाउसेज में क्योंकि अभी मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है, और फिर जब मार्केट में उनकी डिमांड होती है तब वेयर हाउसेज से उनको रिलीज किया जाता है. तो विद दिस पैसेज ऑफ टाइम द प्रोडक्ट हैज बिकम इन डिमांड, इट हैज बिकम यूजफुल. सो warehousing and warehouses create time utility. Similarly, place utility is created by transportation because with the help of different means of transportation, goods are taken to those places where they are required. Transportation की सहायता से ही वस्तुएं उन स्थानों तक पहुंचाई जाती हैं जहां पर उनकी डिमांड है. ठीक है ना? These two main important functions are the part of physical distribution, as I told you in the previous slide. And these warehousing and transportation, why these are important? Because warehousing creates this time utility and your transportation creates place utility. Then another important point about physical distribution system is that it helps in reducing distribution cost. जो वितरण लागतें हैं, इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कार्य को अगर एफिशिएंटली किया जाए, सिस्टमेटिकली किया जाए, पूरा प्लानिंग से किया जाए, तो टोटल मार्केटिंग के कार्यों को सिर्फ एक इस कार्य से मिनिमाइज किया जा सकता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिनिमाइज की जा सकती है बाय प्रॉपरली प्लानिंग दिस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. राइट? कैसे? अगर हम सही प्लानिंग की जाए कि किन किन जगहों तक किस समय पे माल पहुंचाना है, उसके लिए हमें कहाँ नियरेस्ट वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में माल स्टोर करना है, फिर किन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की सहायता लेनी चाहिए हमें, बाय रोडवेज, बाय प्लेन, बाय एयर, बाय रेलवेज. ठीक है? इन डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमें प्लान करना है कि किस मीन्स के जरिए हमने अपने गुड्स सही टाइम पे सही पहुंचाना है मार्केट में. ठीक है? ताकि मार्केट में कस्टमर को वेट ना करना पड़े. और इसके लिए अगेन प्लानिंग की जरूरत है कि किस किस जगह के लिए हमें कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है? हमें कौन से रूट चूज करने हैं ताकि हम अपनी गुड्स को क्विकली बिना डिले मार्केट्स में पहुंचा सकें. देन मटेरियल हैंडलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मटेरियल्स को प्रॉपरली इस तरह से हमें सिस्टम फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है कि मटेरियल की वेस्टेज ना हो. ठीक है? मटेरियल्स को प्रॉपर हैंडल किया जा सके. कस्टमर्स के जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं उनको इस ढंग से प्रोसेस किया जाए ताकि कम से कम टाइम में कस्टमर्स तक उनके ऑर्डर सेंड किए जा सकें. तो ये सारे जो मैंने बताया था कि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कार्य हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग और कस्टमर सर्विस, मटेरियल हैंडलिंग, इन सभी को अगर प्रॉपर प्लान्ड वे में किया जाए, एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को काफ़ी कम कर सकते हैं और कम से कम कीमतों में अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं. देन अनदर
advantage of physical distribution is that it helps in stabilization of prices. How prices can be stabilized with the help of proper matching between demand and supply. Though of course there are some other factors also, but demand and supply are two main forces which can help in stabilizing the prices, because we know when demand is more, supply is less, then prices will increase and vice versa. But if this distribution, physical distribution वर्क इज प्रॉपरली मैनेज्ड, इसको इतने प्लान वे में जैसे भी मैंने बताया किया जाए, इसको एक मैनेज ढंग से किया जा सके, कितने डिमांड और सप्लाई में मिसमैच ना हो सके, तो उसकी सहायता से फिर प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सकता है. देन अनदर बेनिफिट इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज. कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर क्या चाहता है? वो चाहता है कि उन्हें बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट सही टाइम पे मिल जाए, राइट? सो मैंने आपको शुरू में बताया ही था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कार्य को इस ढंग से मैनेज किया जाए कि सही समय पर सही व्यक्ति तक सही स्थान पर सही वस्तु पहुंच जाए. And this is what customer wants. So then in this way customer can be given best services and maximum satisfaction with the help of proper management of physical distribution function. Then another importance is that naturally it will increase the sales. It can increase the sale by managing the customer services, by managing the distribution, supply, right? So it will help the increase in sale and thereby increase in profits also. Then another benefit is it can help in meeting competition of the market, because with the help of proper management, marketer has to supply the goods. Marketer has to process the orders of consumers timely. Marketer has to make the goods available to the customer before the competitor takes his products. So it helps in beating competition and thereby making own place in the market. So this was about how this physical distribution function is important for a marketer. अभी हमने इम्पोर्टेंस देखी मार्केटिंग में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, और नाउ objectives, coming to objectives, and these objectives must be very very clear to you. First is to make available the right goods in the right quantity. जैसा कि हमने किया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक अवेलेबल राइट टाइप ऑफ गुड्स of the right quality in the right quantity at the right place at the right time, right? Then another objective is to have minimum inventory levels, to maintain minimum inventory levels. कैसे minimum inventory levels कैसे maintain किए जा सकते हैं? by knowing the demand in market में कब कितनी डिमांड है हमें ये पता लगाना है. अगर मार्केट की डिमांड के अनुसार डिमांड कम है तो हम अपने पास कम इन्वेंट्री लेवल रखेंगे, ज्यादा है तो इन्वेंट्री लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास हमारा जो स्टॉक है इन्वेंट्री लेवल है ना ही जरूरत से ज्यादा हो और ना ही जरूरत से कम हो. And speedier transportation. Of course, this physical distribution again depends upon transportation means. अभी हमने किए थे, we can take help of different transportation means, but different transportation means are suitable in different situations. ये मार्केटर ने डिसाइड करना है कि किस प्रोडक्ट के लिए किस प्लेस के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ज़्यादा सुटेबल रहेगा, स्पीडियर रहेगा. तो अगेन दिस ऑल हैज टू बी मैनेज्ड बाय the marketer about the use of different means of transportation. Then another objective is that
इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की करते हैं, सो इट विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस, राइट? सो टू establish prices, to minimize prices, to stabilize prices in market is through effective management of physical distribution. Another objective of this function, and one more objective is all this is done again to face competition in market and to give maximum customer service, right? When we talk about marketing, we cannot ignore competition, right? So marketer के द्वारा लिया गया every decision should be keeping into view the competition in market. तो जहाँ तक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, हमने ये सारे काम, मार्केटर ने सारे काम, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है और स्टोर वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज है, ये सभी अपने कंपटीटर मार्केट के कंपटीशन को फेस करने के हिसाब से ही किए जाते हैं, ताकि कस्टमर को बेस्ट सर्विस, क्विक सर्विस प्रोवाइड की जा सके. सो these are the objectives. Students, by this time you must have come to know what you mean by. अब तक आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ठीक है? लेकिन अब हम इस टॉपिक का मेन पार्ट करेंगे, मेन करेंगे, और वो है components of physical distribution. Components. Actually, physical distribution जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका क्या उद्देश्य है? To take the right to move, to transfer, ठीक है ना? सही right type of, right quality of product to the right person at the right time and at the right place, ठीक है? सही व्यक्ति को, सही वस्तु को सही व्यक्ति तक सही समय पर, सही स्थान पर पहुंचाने के लिए ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कार्य किया जाता है, ठीक है? लेकिन इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कार्य को अंजाम देने के लिए, इसको करने के लिए कई काम करने पड़ते हैं, ठीक है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर करने के लिए, गुड्स को फिजिकली फ्लो करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स में, राइट? एंड फर्स्ट कंपोनेंट as I have shown is order processing. Order, जो कस्टमर का ऑर्डर आया है कि उनको जितना माल चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी का, ठीक है? और इस एक्टिविटी में क्या क्या कार्य होते हैं कि कस्टमर का ऑर्डर रिसीव किया जाता है, फिर उस ऑर्डर को हैंडल करना है का मतलब है उस ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है कि हमारे पास वो गुड्स हैं, ठीक है? वो सभी उसको तैयार करना है, उसको पैक करना है, फिर उसकी पेमेंट की सारी व्यवस्था करनी है, फिर इनवॉइस, उसका बिल तैयार करना है, और फाइनली उसको डिस्पैच करना है, ठीक है? ताकि वो कस्टमर तक सही टाइम पे पहुंच जाए. सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ऑर्डर प्रोसेसिंग, राइट? क्योंकि ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग काम, जैसे मैंने बताया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट ही इससे होता है, और अगेन यहीं से बहुत इम्पोर्टेंट कार्य शुरू हो जाता है. और इस ऑर्डर प्रोसेसिंग में कम से कम समय लगना चाहिए, क्योंकि जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही जल्दी गुड्स उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएंगी एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर ऑर्डर, एज पर देयर स्पेसिफिकेशन, ठीक है? सो it is very necessary to minimize this time of order processing. और उसके लिए क्या जरूरी है कि इस पूरी ऑर्डर प्रोसेसिंग की इनको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट किया जाना चाहिए, ठीक है? इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट किया जाना चाहिए कि जब हम ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर उस ऑर्डर को वेयर हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है कि इतने गुड्स का, इन गुड्स का ऑर्डर आया है, इसमें कितना टाइम लगेगा. फिर वहाँ से उस गुड्स को तैयार करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, जो भी उसमें तैयारी की ज़रूरत है वो की जाएगी, उसमें कितना समय लगेगा. फिर उसकी पैकिंग की जाएगी, उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है? और पैकिंग के बाद फिर वो इस डिपार्टमेंट में आएगा जहाँ से डिस्पैच होना है, वहाँ पे उसका बिल तैयार होगा, वगैरह वगैरह. तो ये जो पूरी प्रोसेस है, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस की जानी चाहिए,
जिसमें कि कम से कम समय लग सके, ठीक है, क्योंकि मिनिमम अगर टाइम लगेगा तभी कस्टमर को कम से कम टाइम में गुड्स पहुंचाई जा सकती है, विच ही वांट्स। कस्टमर ये चाहता है कि विदाउट डिले और मिनिमम टाइम में उन्हें गुड्स मिल जाए। तो इसके लिए कार्य जो किया जाता है हम उसे कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। ओके, now another component of physical distribution is storage and warehousing. Again, this is very important function of this physical distribution, क्योंकि स्टोरेज का मतलब है गुड्स को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्म में रखा जाए, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन में रखा जाए और तब तक रखा जाए जब तक कि कस्टमर की डिमांड नहीं आती, ठीक है। तो अब कुछ गुड्स होती हैं जो सिर्फ सीजनली ही प्रोड्यूस होती हैं लेकिन पूरे साल उनकी डिमांड होती है, राइट। कुछ गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके विंटर क्लॉथ्स हैं, समर में बनाए जाते हैं और उनको बना के स्टोर करके रखा जाता है ताकि जब विंटर में उनकी डिमांड हो तब उनको रिलीज किया जाए, ठीक है। तो ये जो कार्य किया जा रहा है इसे हम कहते हैं स्टोरेज, ठीक। स्टोरेज मीन्स कीपिंग द गुड्स इन प्रॉपर कंडीशन so that those can be dispatched to the customer whenever they are demanded by the customer, ठीक है। और जिस जगह पे इन गुड्स को स्टोर किया जाता है उसे कहा जाता है वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस कह सकते हैं, गोडाउन कह सकते हैं। ये वेयर हाउसेज भी बहुत तरह के होते हैं, पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं, प्राइवेट होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। लेकिन warehouse is again very important function of this physical distribution because it is only in the warehouse proper systems are managed, proper systems are made so that goods are kept in the right condition, ठीक है। सिस्टम ऐसा हो ताकि गुड्स को जिस कंडीशन में तैयार करके रखा गया है, जितने भी समय के लिए उसे स्टोर करके रखा जाएगा उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट या खराब ना हो। अदरवाइज अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी भी खराब हो गई तो वो फिर डिस्पैच के लायक नहीं रहेगा, कस्टमर के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वेयर हाउस में क्या क्या सिस्टम फॉलो करनी है, ठीक। और दूसरी इसमें बात है कि वेयर हाउसेज कहाँ पे हमने मेंटेन करने हैं, और जनरली वेयर हाउसेज इस जगह पर ऐसे इन प्लेसेस पर अरेंज किए जाते हैं जहाँ से कि मार्केट में या कस्टमर तक जल्दी से क्विकली पहुंचाई जा सके, ठीक है। सो वेयर हाउस परफॉर्म्स द फंक्शन लाइक कीपिंग द गुड्स इन स्टोर इन प्रॉपर कंडीशन, ठीक है। Then they also sometimes assemble the goods, sometimes they make arrangement for taking also, they make arrangement for maintaining the quality of product like this, ठीक है। So this warehousing function again as well you see is very important so that the quality goods would be dispatched to the customers, right। तक सही टाइम पे पहुंचाने के लिए अभी हमने देखा कि सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक स्टैंडर्ड सिस्टम हमें सेट करना पड़ता है, फिर गुड्स को स्टोर करने की एक व्यवस्था वेयर हाउसेज में करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर अगला कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगला कार्य है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, राइट। अभी हमने बात की वेयर हाउसेज की जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, राइट। तो गुड्स बहुत तरह के हो सकती हैं, कुछ फिनिश्ड भी है, सेमी फिनिश्ड भी है, स्पेयर पार्ट्स भी हैं, रॉ मटेरियल भी है। इन सब से मिलकर बनता है इन्वेंट्री, और इस इन्वेंट्री की प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जितनी भी तरह के हमारे पास स्टॉक हैं, चाहे वो कितनी तरह के फिनिश्ड गुड्स हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, स्टोर्स हैं, इन सब के प्रॉपर लेवल्स मेंटेन करने पड़ते हैं स्टोर्स में, ठीक है। प्रॉपर लेवल का मतलब क्या है कि लेवल इन स्टोर के ना तो जरूरत से ज्यादा हो और ना ही कम, दिस शुडंट बी एक्सेसिव नॉर देयर शुड बी शॉर्टेज,
वाई, सपोज हमारे पास कस्टमर का एक ऑर्डर आया है और हमने देखा कि ये स्टॉक तो ये गुड तो हमारे पास है ही नहीं, इसका माल तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब कस्टमर वेट नहीं करेगा और हमें वो नुकसान हो गया, ठीक है। और या फिर कोई वस्तु ऐसी है जिसका हमने जरूरत से ज्यादा स्टॉक रख लिया, जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखने की वजह से कुछ एक्सपायर हो गया, कुछ डिटीरियोरेट हो गया, कुछ सड़ गया, कुछ गल गया, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इन इन्वेंटरीज को, स्टॉक्स को वेयर हाउसेज में प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ताकि हमारे पास हर चीज का पर्याप्त स्टॉक हो। पर्याप्त का मतलब ना ही जरूरत से ज्यादा और ना ही जरूरत से कम, ठीक है। अगर जरूरत से कम होगी सो इट विल बी द सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट, राइट, कि हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं है, राइट। और अगर जरूरत से ज्यादा है सो इट विल बी द सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, कि हमने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी और उसका हमें नुकसान हो रहा है। और ये दोनों सिचुएशंस एक मार्केटर के लिए नुकसानदायक होती हैं, और इस नुकसान से बचने के लिए इन्वेंट्रीज और स्टॉक्स को मैनेज और कंट्रोल करना पड़ता है थ्रू मेंटेनिंग देयर डिफरेंट लेवल्स, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, लाइक दिस, ठीक है। देन next component is material handling. Again, this is very important. Material handling का मतलब क्या है कि हमारे पास जितना भी स्टॉक है, जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो फिनिश्ड हैं, चाहे वो अनफिनिश्ड हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही हैं, ठीक है, हमारे स्टोर्स में है, गोडाउन्स में है, हमारे वेयर हाउसेज में है, उनको प्रॉपरली हैंडल करना है, ठीक। अगर उन्हें रफली हैंडल किया जाता है, केयरलेसली हैंडल किया जाता है, तो उससे क्या होगा, टूट फूट होगी, नुकसान होगा, वेस्टेज होगी, ठीक है, एंड इट विल रिजल्ट इन लॉस, ठीक। तो इसके लिए प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग जरूरी है, और प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि ये गुड्स स्टोर से डिस्पैच डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचेंगी। कई बार उनके लिए वो छोटे लोडिंग मशीन्स की जरूरत पड़ सकती है, या हैवी हैं जो जरूरतें, उनके लिए क्रेन्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये सारे सिस्टम्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि इस दौरान गुड्स की हैंडलिंग में किसी भी तरह की टूट फूट ना हो, डैमेज ना हो। क्योंकि अगर सपोज आपके पास ऑर्डर आया है, आपको 5 टीवी का हमारे पास ऑर्डर आया है, और आपने जल्दबाजी में टीवी लोड करते समय एक टीवी में नुकसान हो गया, थोड़ी सी भी टूट फूट होगी, इसका मतलब वेस्टेज हो गई वहां पे, और वो टीवी बेकार हो गया, ठीक है। तो इस सभी नुकसान से बचने के लिए प्रॉपर हैंडलिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है, ताकि नुकसान भी ना हो और गुड्स कम से कम टाइम में कस्टमर्स तक पहुंचाए जा सके, इफ देयर विल बी प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, राइट। एक और लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मटेरियल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम, ठीक है, और वो है ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक जितने भी कंपोनेंट्स हमने किए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गुड्स को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, उनमें ट्रांसपोर्टेशन वो कंपोनेंट है जो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है, जिसकी लागत सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, because it is with the help of these transportation means goods are taken from one place to another, and so this transportation activity creates which utility, place utility, as I told you in the beginning, ठीक है। सो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुड्स को लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा लागत अभी अब तक हमने पढ़ा ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग, वो सारे सिस्टम अपनाने पड़ते हैं, लेकिन उन सभी सिस्टम से ज्यादा लागत आती है इस ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट में, ठीक। इसलिए मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपोनेंट पे खास ध्यान देना, अगर वो कॉस्ट, टोटल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को कम करना चाहता है, ठीक है। सेकेंडली, important thing about transportation is that there are different means of transportation.
रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड इवन पाइपवेज, ठीक है। और हर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट के केस में, डिफरेंट सिचुएशंस के केस में, डिफरेंट प्लेसेस के केस में अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीन्स ही ज़्यादा सूट करता है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ रेलवेज, थ्रू रेलवेज ही एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाया जा सकता है। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ एयरवेज या वाटरवेज, स्पेशली हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में वाटरवेज, बाय शिप्स एंड बाय एयर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकती हैं। लेकिन कुछ प्लेसेस के केस में, कुछ प्रोडक्ट्स के केस में रोडवेज इज द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो अब ये मार्केटर को देखना है, ये उसने डिसाइड करना है बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, कि किन जगहों के लिए, किन प्रोडक्ट्स के लिए, किन गुड्स के लिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट रहेगा, ठीक है। बेस्ट रहेगा मतलब जिससे लागत भी कम से कम हो, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स स्पीडी भी हो, जल्दी से जल्दी भी उपभोक्ताओं तक गुड्स पहुंच जाएं, रिलायबल भी हो, भरोसेमंद भी हो, जिस पे भरोसा किया जा सके कि गुड्स को सही कंडीशन में, सही समय पे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकेगा, सेफ्टी कंसर्न्स भी हों, ठीक है। ऐसे मीन्स जिसमें गुड्स पूरी सुरक्षित रहें, उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये मार्केटर के को डिसाइड करना है कि किन हमारी गुड्स के लिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ट रहेगा, ठीक। और इसमें एक मैंने मीन्स यूज किया था पाइपलाइन। बाकी सभी मीन्स तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जो पाइप लाइन के थ्रू ही, ठीक है, पहुंचाई जा सकती हैं। जैसे आपका वाटर है, वाटर सप्लाई कैसे आती है, थ्रू पाइप से आती है। और कुछ शहरों में इवन एलपीजी गैस, राइट, एलपीजी गैस की सप्लाई भी कैसे होती है, थ्रू पाइप से होती है, ठीक। तो इन कुछ ऐसी लिक्विड थिंग्स होती हैं या गैसेस होती हैं जिनके केस में पाइप वेज ही बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है, ठीक। तो दिस इज about transportation, ki how it is important, how marketer has to be very careful in selecting the right means of transportation so that goods could be transported, goods could be moved from the place of production to the place of distribution or to the place of consumption in less time, with less cost, in efficient manner, without any delay, right. So these were the 5 components, and by this time you must have understood, students, that how physical distribution takes place and how it is important in marketing. So this is all about our physical distribution topic. Have a good day, students, and if you have any queries, if you have any doubts, you can ask me, right. You can clear your doubts. Okay, goodbye, students.